Let's start now. Yes, I think we may start. Yes, yes, sir. Anshul, Dr. Anshul, are you there? Okay, ma'am. So we start this program. No, welcome to this webinar on Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan, and I welcome Dr. Mittal, who is the key speaker, and Dr. Bhanu Pratap Singh, who is the regional director, and Dr. Savita and other colleagues and students to this webinar. Dr. Anshu Mittal is a professor and head, Department of Community Medicine, Institute of Medical Sciences and Research, Mulana, Ambala. She has a total experience of 16 years and has published about 42 research papers in national and international journals, and she has actively involved in teaching and training of undergraduate and postgraduate students, and worked in this field. Is area of expertise is the nutritional deficiency diseases, geriatric health, and epidemiology. And moreover, as we all know, the President of India, Shrimati Draupadi Murmu, virtually launched the Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan on September 9, 2022. It is the duty of all citizens to give high priority to the Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan and to make this campaign a mass movement. It is because TB causes the largest number of deaths among all other infectious diseases in our country. India has a little less than 20% of the population of the world, but has more than 25% more TB patients of the world. And really, this is the matter of concern. And as per United Nations Sustainable Development Goals, all the nations have to set the goal of eradicating TB by the 2030. But the government of India has target of eradicating TB by the year 2025. Uh, and efforts are being made at every level to fulfill this resolution. And IGNU is playing also a little role and to aware the masses about this infectious disease. Uh, to make this campaign a mass movement, awareness about TB has to be created among the people. So we are doing this. They have to be informed that prevention of the disease is possible. Its treatment is effective and accessible. And the government of India provides free of cost facility for the prevention and treatment of this deadly disease. Uh, in some patients or communities, there is a in inferiority complex about this associated with disease, and they view the disease as a stigma. From long time it has been seen. The illusion has also been to be eradicated. So the mass movement and awareness is in this direction is necessary. With the treatment, one can definitely get rid of this disease. All these things should reach the pupil. Then the people affected by TB will be able to take advantage of the treatment facilities. Uh, in this, the Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan has been uh, envisioned to bring together all community stakeholders to support this on TB treatment and accelerate the country's progress towards TB elimination. With these words, I request my regional director, Dr. Bhanu Pratap Singh, to say a few words and welcome our key speaker, Dr. Anshul Mittal. Thank you. Thank you, Dr. Nurulji, and my all colleagues. And thank you, madam, for coming on very short notice.
So on behalf of my regional center, I welcome you. और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि भारत पे बहुत सारी विपदाएं आई हैं, लेकिन भारत ने उनका हर विपदा का डटकर मुकाबला किया. If we seen past precedents, Corona, COVID-19, and India was the first country who win the war. और इवन मुझे लगता है कि हम लोग जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके लीडरशिप में हमारा जो देश है वो दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है. और हम जो कोविड पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप. और अभी भी जिसका जो पहल अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया कि हम भारत को टीबी मुक्त भारत के रूप में देखना चाहेंगे, यह प्रयास भी बहुत सराहनीय है. और हमें विश्वास है कि हम जल्दी ही और अवश्य ही इस जो हमारा जो मुकाम है इसको भी प्राप्त कर लेंगे. एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इग्नू को ही क्यों चुना इस टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए. ये हम सभी जानते हैं कि इग्नू विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और हमारे जो स्टूडेंट हैं वही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं. चूंकि हमारी संख्या, हमारे जो स्टूडेंट की संख्या, हमारे स्टडी सेंटर की संख्या, हमारे रीजनल सेंटर की संख्या की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो हम विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के रूप में उभर कर आए हैं. और यही कारण है कि एक जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हम और हमारे स्टूडेंट और हमारे कोऑर्डिनेटर इस टीबी मुक्त भारत अभियान की जो मुख्य विशेषताएं हैं या मुख्य बातें हैं, हमें क्या ध्यान में रखना है और क्या ध्यान में नहीं रखना है और कैसे हम इस पर काबू प्राप्त कर सकते हैं, शायद इसीलिए इग्नू का चुनाव किया गया. खैर, मैं नूरुल हसन जी ने बहुत सारा कुछ बताया और अंशुल मित्तल जी भी हमारे समक्ष उपलब्ध हैं, तो मैं आप सबके बीच में नहीं आना चाहूँगा. मैं चाहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीबी मुक्त अभियान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें. थैंक यू एंड वेलकम मैडम. ओवर टू यू. Thank you, ma'am. Now we can start, and I request Dr. Anshu Mittal to start his conversation. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Bhanu Pratap sir. Thank you, Nurul sir, and all IGNU team members to give me this opportunity that I can share my views on this newly launched flagship program regarding TB by our Honorable Prime Minister Modi ji. As it was launched on 9 September, sir has already told you. Sir, I am audible? Yes, you are very much audible. Yes, sir. So just give me 1 minute so that I can share my screen and then we can start. My screen is visible, sir? Not yet, ma'am. जी सर. तो सर ने जैसा कहा कि कुछ मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए. तो सबसे पहले कुछ इसके इतिहास के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ये प्रोग्राम आज से नहीं है, 50 साल हो गए हैं हमें इस प्रोग्राम को भी चलाते हुए. और टीबी तो अगर मैं कुछ इतिहास की बात करूं तो टीबी शायद जो बैक्टीरिया है, जो टीबी करने वाला बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम जिसे हम कहते हैं, हम इसे 30 लाख साल पुराना हमें इसके अवशेष मिले हैं. जबकि जो आज की हमारी प्रजाति है इंसान की, वो शायद 10 लाख साल पुरानी भी नहीं है. So that is how this Mycobacterium tuberculosis bacteria, you can say, is so much resistant. इतना strong है, इतना ताकतवर है कि हमें ये बीमारी भी दे रहा है. And as such, TB is known for the last 9,000 years to our mankind. We have found TB bacteria in bodies which have been recovered during excavation or anything. You can say the earliest being 9,000 years, and as such in India we have found some kind of literature and other things for more than 3,300 years ago. That is how this is the, you can say, oldest disease known to mankind, for which we can have anything, we can say anything that this is the disease which is there to the mankind. And
this disease, then because this is the oldest one, so it came to notice of the even the oldest physicians right from the beginning, when they have actively started curing the diseases, we can say that. And TB drugs as such, which we know that you must have seen on your TV screens also, or any kind of media, that now TB is treatable, tuberculosis is treatable. But before that treatment came into being, there was not, you can say TB was as dangerous, considered as dangerous as today we talk about cancers or some other diseases, that if this thing has happened, maybe I may have to lose my life. तो सेम थिंग वाज देयर विद टीबी ऑल्सो, कि लोगों को ये लगता था कि टीबी हो गई तो शायद अब इसके बाद जिंदगी खत्म है. बट इट वाज सीन इवेंचुअली कि और कुछ नहीं, तो जब तक दवाएं नहीं आई थी तब तक टीबी का हल कुछ इस तरीके से निकाला जा सकता था कि अगर साफ हवा, अच्छा खान पान, इन चीजों पे ध्यान दिया जाए तो शायद टीबी के मरीज का जीवन कुछ लंबा किया जा सकता है. एंड दैट वाज द कॉन्सेप्ट कि हमारे पास टीबी सैनिटोरियम्स थे. एंड इफ यू गो टू हिमाचल प्रदेश, द स्टेट, अगर मैं अपने आसपास की बात करूं, बिकॉज वी आर टॉकिंग फ्रॉम चंडीगढ़ सेंटर, तो वहाँ हमारे जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे आपको बहुत सारे टीबी सैनिटोरियम मिलेंगे. और उसका एक ही कारण था कि वहाँ की हवा शुद्ध गिनी जाती थी. पहाड़ों में हमें सबको पता है कि कहीं न कहीं पोल्यूशन बिल्कुल कम है, शांति है, हवा शुद्ध है, और खान पान का ध्यान अच्छा. वहाँ पे जब उस इंसान की जिंदगी जो है बहुत ठहरी हुई है, तो ये सारी चीजें सोचते हुए बहुत सारे टीबी सैनिटोरियम इंडिया में भी वहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे. यहीं अभी भी पास में हमारे पास एक टीबी सैनिटोरियम धर्मपुर में है, जो आज भी टीबी के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ टीबी सैनिटोरियम, कि पेशेंट को एक अच्छी आबो हवा मिले तो शायद उससे हम टीबी का कुछ हल कर पाए. और ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है. एक तरफ मैं कह रही हूँ कि इंडिया में मोर देन 3000 years वी हैव नोन दैट टीबी वाज देयर, और 100 साल पहले तक ही हमारे पास कोई खास दवाएं नहीं थी. तो दिस इज द स्टेटस ऑफ टीबी, यू कैन से. And this is also just to show you that this is one movie by Raj Kapoor and Nargis in 1930s, which again highlighted the same concept, that the main character played by Raj Kapoor got TB, and then as we have you can say concept in Bollywood, that one get some, you can say किसी को जानलेवा बीमारी हो जाती है तो वो अपने प्रियजनों से दूर होना शुरू कर देता है. तो this was there that he gets TB, or then the whole story revolves around that. So because that was the people could connect to this concept कि हाँ TB जानलेवा बीमारी है. Now this is not the case, that TB is not जानलेवा है. ऐसा कुछ जानलेवा नहीं है अगर टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाए. So this is how the treatment started, and since 1950s now we could see that even these sanatoriums as such, we don't require. If somebody requires, it is okay. Otherwise TB patients could be treated very well at home only by taking those drugs. So then eventually public health workers, they were also involved in this treatment part, that because TB का treatment जो है थोड़ा लंबा चलता है. 6 महीने कम से कम है. रादर जब शुरू हुआ था तब तो हम 9 से 12 महीने की बात करते थे. अब हमने थोड़ा सा उसको और छोटा कर दिया. और बिकॉज नाउ वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ इवन ड्रग रेजिस्टेंट tuberculosis also, so that treatment even goes up to 24 months. So what happens कि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट का असर दिखना शुरू हो जाता है तो पेशेंट दोबारा वो ट्रीटमेंट छोड़ जाते हैं. इसीलिए हेल्थ वर्कर्स इन्वॉल्व किए गए कि दे कुड एंश्योर कि हर मरीज पूरी की पूरी दवाएं खाए. Now what we are doing, the latest scenario is that अगर हेल्थ वर्कर्स नहीं भी जा पा रहे, डिफिकल्ट एरियाज हैं, बीच में कोविड आया, जब हाउस टू हाउस विजिट करना या लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल कम हो गया, तब हमने क्या किया कि हमने इवन वीडियो कॉल से ये इंश्योर किया कि हर पेशेंट को जो दवाई है वो टाइम पे ले रहा है या नहीं ले रहा, सो दैट कि ऐसा कोई भी सीन ना बने कि वो दवाई नहीं ले रहा और उसके बाद उसकी टीबी दोबारा बिगड़ जाए. दवाई ना लेने का और भी एक नुकसान है कि पहली जो दवाई का कोर्स है वो 6 से 9 महीने में टीबी मोर और लेस ठीक कर देता है.
पर होता क्या है कि अगर हम वो दवाएं छोड़ देते हैं तो हम उन दवाओं के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब हमारी टीबी उन दवाओं से ठीक नहीं हो सकती, फिर हमें कुछ और, जो एक आम आदमी की भाषा में कहे कि स्ट्रॉन्ग दवाइयां देनी पड़ती हैं, और उनका कोर्स भी लंबा है, 24 महीने तक वो दवाइयां चलानी पड़ती हैं। तो दैट इज द रीजन कि वी ट्राई टू एंश्योर कि it should be taken up properly, all the dosage, all the drugs, all the medicine, they should be taken by the patient on a regular time so that that resistant case doesn't happen. So this is the reason that we involved all these public health workers, and now we are doing the video calls or these kind of things, so to ensure that every treatment is taken religiously and at a time. So now what is the current scenario? We have achieved a huge success. Undoubtedly it is not that कि जो टीबी एक दिन जानलेवा लगती थी, आज की डेट में कहीं ना कहीं फिर भी हमें श्योरिटी है कि this disease is treatable. So we have, in that words, we can say that we have achieved a huge success. Undoubtedly government has done a very good duty, our health workers have done so dedicatedly devoted to this program, but still there are problems, and these problems are rather coming up new. Like हमने एक स्टेप हम चढ़े तो हमें 4 स्टेप नीचे दोबारा से खींचा जा रहा है. What are the reasons? TB mycobacterium is developing resistance to the treatment, as I have talked about, to you, that now the routine treatment, somewhere TB patients are not responding to that treatment, and it has been seen that more than 15%, means 100 TB मरीजों में से 15 मरीज ऐसे हैं जिन पे जो रूटीन टीबी की दवाएं हैं वो असर नहीं करती. तो दिस इज अ वेरी बिग नंबर, क्योंकि वो 15 लोग, क्या होगा जब उन 15 लोगों से टीबी फैलेगी तो वो सारे के सारे दोबारा ऐसी ही टीबी होगी जो दवाओं, जिन पे दवाएं असर नहीं करेंगी. तो मींस ये 15 से नंबर बढ़ के 30 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, और किसी दिन हम बिल्कुल दोबारा से उसी कंडीशन में पहुंच जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया कि 1905 से पहले जब हमारे पास कोई दवाएं थी ही नहीं, तो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. देन एयर पोल्यूशन, बैड लिविंग कंडीशंस ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, दे आर आल्सो इंक्रीजिंग ऑल द थ्रेट्स. सी, जो टीबी का बैक्टीरिया है, अगर मैं अपनी इंडियन पॉपुलेशन की बात करूं, 40 से 50% पॉपुलेशन जो है उन सबके लंग्स में टीबी का बैसिलस घर करके बैठा है, क्योंकि टीबी की इन्फेक्शन इतनी ज्यादा है. पर होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर बैसिलस घुस गया, वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चला गया तो टीबी होती रहेगी. नहीं, हमारी बॉडी में भी लड़ने की ताकत है. तो होता क्या है, एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है कि वो पड़ा रहता है, वो भी नहीं मरता, पर हमें टीबी भी नहीं होती. पर जैसे जैसे किसी वजह से मेरी जो लड़ने की शक्ति है अगर वो कम हो जाएगी तो वो बैसिलस एकदम से फ्लेयर अप कर जाएगा और मुझे टीबी हो जाएगी. तो वो किस वजह से हो सकता है? ये एयर पोल्यूशन, बैड लिविंग कंडीशंस. बैड लिविंग कंडीशंस का मतलब क्या है कि जैसे स्लम्स की बात करें, जहां पे लाइट नहीं पहुंच रही, हवा नहीं पहुंच रही, ये बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है टीबी बैसिलाई के ग्रो करने के लिए. तो ये सारी चीजें जब हैं, और उसके साथ साथ हमारा खान पान बहुत खराब हो गया है, इधर हम खा ही नहीं रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग डाइटिंग और इन चीजों पे चल पड़े हैं, या जो खाना पीना है वो ऐसा है ज्यादा तेल वाला या ज्यादा नमक मिर्च. एक हेल्दी डाइट जिससे इम्यूनिटी डेवलप होती है, दैट इज नॉट देयर. सो दीज आर द कंडीशंस व्हिच आर अगेन मेकिंग दिस टीबी कंडीशन वर्स in this scenario. And along with what I have depicted on the slide, also increasing HIV/AIDS. HIV/AIDS क्या है? HIV/AIDS एक ऐसी बीमारी है जो आपकी बीमारी से लड़ने की शक्ति को कम करती है. HIV/AIDS itself कोई बीमारी नहीं करती, वो सिर्फ यही करती है कि हमारी किसी भी बीमारी से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है. तो इवेंचुअली क्या होता है, हमें थोड़ी थोड़ी कोई इन्फेक्शन होती रहती है, और जिस दिन वो इन्फेक्शन का वजन हमारी बॉडी पे इतना ज्यादा हो जाता है तो दैट इज देयर की देन देयर इज डेथ इन HIV/AIDS. सो व्हाट इज हैपनिंग, जैसे मैंने आपको कहा, टीबी में यही हो रहा है कि टीबी बैसिलाई है पर हम उससे लड़ रहे हैं, हम उसको दबा के बैठे हैं. तो जब HIV/AIDS जिस इंसान को हो जाता है, वहां पे फिर से टीबी का वो जो बैसिलस है, जो बैक्टीरिया है, उसके जागने की फिर से शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि HIV/AIDS हमारी अपनी लड़ने की शक्ति को कम कर देता है. तो दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस व्हिच आर अगेन वर्सनिंग द कंडीशन.
तो उसमें जो सबसे बड़ा, जैसे मैंने सबसे पहले लिखा है कि डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू द ट्रीटमेंट। एंड क्यों रेजिस्टेंस डेवलप होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट है, उसके साथ साथ वो जो उसको अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए वो नहीं देता। तो ये जो अगर इतने एजेंडा को भी हम कर पाए, साथ साथ में HIV एड्स पे हम दूसरी तरफ काम कर ही रहे हैं अपने दूसरे प्रोग्राम के थ्रू, तो वी विल बी एबल टू टैकल द प्रॉब्लम। सो दिस वाज द रीजन दैट finally our honorable prime minister and then president, they both launched this program, that is TB Mukt Bharat Abhiyan. As Nural sir told us that on September 9th this program was launched, and with this you can say oath that everybody will be committed to achieve this thing. What is the achievement or what is the outcome expected of this program is TB Mukt Bharat Abhiyan. That is that we have to make India TB free. We want that every Indian should be free of TB. जो हैं पेशेंट उनको हम ट्रीट कर पाएं और नए पेशेंट ना हो. This is what we mean by anything free of country free of that disease. तो जो नए पुराने पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट हो जाए और नए कोई पेशेंट हो ना, तो देन वी विल बी एबल टू कोट दिस थिंग दैट वी आर नाउ TB free India. So this is the motive of this program or this abhiyan, Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan, that we have to make India free of TB by 2025. 2025. So just to have a little bit of background, सर ने वैसे बहुत सारे numbers already आपको बता दिए हैं that India has the highest tuberculosis burden with an estimated of 26 lakh people contracting the disease and 4 lakh dying every year. Now you see the gravity of the situation. कोविड में इतनी डेथ्स नहीं हो रही थी जब से हमने हाई तौबा मचा दी थी, जबकि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहे हैं, हर साल 4 लाख लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, बट स्टिल वी आर समवेयर अनअवेयर. जो दूसरा इंसान है जिसको टीबी नहीं है उसको लगता है कि मुझे तो होगी नहीं, हम कहीं ना कहीं उससे आंखें फेर के बैठे हैं. सो दिस इज द मोटिव ऑफ प्रधानमंत्री अभियान कि कैसे सबको हाथ मिलाना पड़ेगा. As you can see the logo also, that we all need to join hands to have a TB free India. TB usually affects economically productive age group of the society. क्यों? क्योंकि वो एज ग्रुप में ही है जब स्मोकिंग डेवलप हो जाती है या हम काम पे निकलते हैं, वी आर मोर एक्सपोज टू एयर पोल्यूशन एंड एवरीथिंग. तो उसी टाइम पे टीबी भी दोबारा फ्लेयर अप करने का, जो टीबी बेसिलाई जैसे मैंने आपको बताया हमारी बॉडी के अंदर भी है, उसको दोबारा से जागने का मौका मिलता है. एंड व्हाट इज हैपनिंग, उससे क्या है कि बीमार तो हुए बट दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव अस अ डबल इकोनॉमिक लॉस. एक कि मैं पैसा कमाने निकली थी वो नहीं कमा पाऊंगी जस्ट बिकॉज आई एम नॉट वेल, एंड सेकेंडली मेरी बीमारी पे जो खर्च होगा. तो दो चीजों से, दो तरह से मुझे जो है आप कह सकते हैं आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा. सो दैट इज द अगेन रीजन फॉर दिस अभियान. Ministry of Health and Family Welfare is already running its ambitious national strategic plan with the goal to achieve SDG and TB targets by 2025. That again नूरल सर ने भी बता दिया है, मैं वही चीज रिपीट कर रही हूँ कि हमारा ये टारगेट है कि 2025 में हम भारत को टीबी मुक्त कर सकें. तो जैसे मैंने कहा कि जस्ट नॉट कि एक दवाएं देने से काम नहीं होगा, टीबी बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है. सिर्फ एक ये नहीं है कि बैक्टीरिया आया और उसने बीमारी कर दी, हमारे खान पान से जुड़ा है, एयर पोल्यूशन से जुड़ा है, स्मोकिंग से जुड़ा है, अच्छी लिविंग कंडीशंस नहीं है उनसे जुड़ा है. तो इसलिए हमें इसको कंट्रोल करने के लिए भी हर चीज को ठीक करना पड़ेगा. सिर्फ इतना ठीक कर देने से नहीं होगा कि हमने मरीज को दवाई दे दी और काम हो गया. हमें लिविंग कंडीशन भी अच्छी करनी पड़ेगी, उसके खान पान को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, उसे सिगरेट तंबाकू सेवन ना करने के लिए भी मोटिवेट करना पड़ेगा, तो ही हम इस सारी अपने आप को टीबी फ्री कर पाएंगे. So that is the motive of this Pradhan Mantri TB Bharat Abhiyan, that we have to do the work as a multi-sectoral coordination. Multi-sectoral कि हर तरह के सेक्टर को, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को भी सामने आना पड़ेगा. सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री के काम करने से कुछ नहीं होगा, जनरल पब्लिक को लाना. लाइक यू आर सीइंग कि इग्नू, इट इज इन द एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड स्टिल दे आर ऑर्गेनाइजिंग दिस लेक्चर. क्यों? क्योंकि हम आप लोगों को, आप बच्चों के जरिए, बिकॉज यू आर द जनरेशन
those who are at more risk, one thing. Secondly, you understand and you can make your families aware ki what is TB and what should be done. So this is the motive of this Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan, that involve everybody, everyone. जितने 140 करोड़ हैं भारत में, सबको इन्वॉल्व किया जाए, सब हाथ मिलाएं और शपथ लें कि हमने अपने आप को टीबी मुक्त कराना ही कराना है. देन इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, जो कैसे करना है, बोलना आसान है, कराना है, तो कैसे आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी या हम क्या करना चाहते हैं. तो इसमें जो सबसे एक नया हमने सरकार ने इसमें नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, दैट इज निक्षय मित्र. निक्षय मित्र और डोनर. अब निक्षय मित्र का क्या मतलब है? हिंदी की टर्म है. निक्षय का मतलब है टीबी मुक्त. टीबी को हिंदी में क्षय रोग बोला जाता है, तो निक्षय का मतलब टीबी मुक्त, कि टीबी जिसको ना हो. मित्र का मतलब कि जो हमें टीबी फ्री होने में मदद करेगा. मित्र, फ्रेंड. तो जो दोस्त, जो मित्र हमें टीबी फ्री होने में मदद करेगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट. और दिस ही विल बी द एक्चुअली की पर्सन ऑफ दिस प्रोग्राम प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान. अब कौन हो सकता है निक्षय मित्र? निक्षय मित्र कोई भी हो सकता है. कोई एनजीओ हो सकती है, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई एजुकेशनल बॉडी हो सकती है, और हम खुद से भी हो सकते हैं, अकेले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. whosoever is willing to support the टीबी पेशेंट कि वो कैसे अपने आप को टीबी मुक्त करा पाए. तो निक्षय मित्र एक पोर्टल क्रिएट किया गया है जिसपे कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, कॉर्पोरेट, सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, NGOs, political parties, partners who can support by adopting the health facilities or for accelerating response against TB to complement the government efforts. कि सरकार तो कर ही रही है, सरकार दवाएं भी दे रही है, सरकार ने अपने वर्कर भी लगाए हुए हैं जो वीडियो कॉल करके या कैसे भी करके. स्टिल देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट है. ऐसा नहीं है न्यूट्रिशनल सपोर्ट नहीं दे रही सरकार. ऑलरेडी जो उसकी अपनी एक्टिविटीज पहले से चल रही थी, अगर आप दूसरे कॉलम में देखें, मैंने हाईलाइट किया नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम. दिस इज द प्रोग्राम विच इज स्टिल विच इज ऑलरेडी रनिंग. इसके अंडर हम एक डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देते हैं हर टीबी पेशेंट को 500 रुपए प्रति माह. वो किस लिए है कि वो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन टीबी के मरीज को चाहिए वो उसको मिल पाए. बट स्टिल कहीं ना कहीं वो 500 रुपए मरीज कहीं और खर्च कर देता है, फिर भी वो अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं कर रहा, बिकॉज टीबी इज स्टिल कहीं ये डिजीज लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा की है, क्योंकि वहां पे वो सारी चीजें थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है, लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, दे आर मोर यू कैन से एक्सपोज टू दीज पोल्यूशन एंड अदर थिंग्स. तो दैट इज द रीजन कि उनको हमने अपनी तरफ से सपोर्ट दी थी, पर बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैविंग इकोनॉमिक लॉसेस, तो व्हाट दे आर डूइंग कि वो 500 रुपए वो अपनी किसी और चीज में खर्च कर देते हैं रादर देन कि अपने खाने पीने का ध्यान रखें. तो व्हाट इज हैपनिंग कि अगेन the response to anti-TB treatment, that is not full-fledged. So this is the reason that we want that people from the community should come forward so that they can motivate that TB patient. वो TB patient को adopt करें, उसकी responsibility लें, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है उसको मोटिवेट करें, उसके खाने पीने का ध्यान रखें. अगर वो खुद से अफोर्ड नहीं कर सकता तो वी वांट कि उनकी तरफ से कोई ऐसी डोनेशंस हो कि वो उसके खान पान को दे सके. एंड अगर मैं दूसरी स्लाइड पे आपको बताती हूँ और क्या सर्विसेज दे सकते हैं, पर उससे पहले जस्ट कमिंग टू व्हाट आर द discrete objectives of this initiative, why this initiative has been started. One thing we have discussed a lot, provide additional patient support to improve treatment outcomes of TB patients. Additional patient support का मतलब ये है कि दवाओं से हटके क्या है कि उसको अच्छा खान पान, अच्छा एनवायरनमेंट, जो भी हम उसके लिए कर सकते हैं वो करें ताकि जो टीबी ट्रीटमेंट का आउटकम है वो हमें फेवरेबल मिले. ऑगमेंट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन मीटिंग इंडियाज कमिटमेंट टू एंड टीबी बाय 2025. कि सारे के सारे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का मतलब कि हम लोग जो कम्युनिटी का पार्ट है, हम लोग सामने आए, हम लोग भी अपना योगदान दे पाए कि भारत
जो है टीबी मुक्त हो सके। जैसे हमने अपने आप को अगर पोलियो मुक्त किया है तो हमारी कंट्रीब्यूशन के बिना तो हो ही नहीं सकता था। अगर हम अपने बच्चों को वहां पे टीकाकरण के लिए ना लेके जाते तो हम पोलियो मुक्त नहीं हो सकते थे। तो सेम इज हियर कि अगर हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी तो हम अपने देश को टीबी मुक्त नहीं कर पाएंगे। दैट इज द रीजन, दैट इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव, दैट टू इन्वॉल्व होल ऑफ द कम्युनिटी ऑफ आवर कंट्री टू मेक इंडिया टीबी फ्री। देन लीवरेज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज, कि कहीं ना कहीं जिन ऑर्गेनाइजेशंस में ये दम है जो एक्चुअली में कुछ कर सकते हैं, द एनजीओज, कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज, उनके पास फंड्स होते हैं तो उनके पास मैन पावर भी है। कहीं ना कहीं हमने भी उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि इफ यू आर सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन यू शुड डू सम सोशल गुड, तो दे शुड ऑल्सो डू द सोशल गुड इन फॉर्म ऑफ this activity ki they support the TB patients and help government to make our country TB free. So what is the scope of this initiative? क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं इस अभियान के तहत, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में हम क्या क्या कर सकते हैं? सो वन थिंग इज निक्षय मित्र, जो मैंने आपको बता दिया कि जो इसमें की एक्शन है और की यू कैन से प्रोवाइडर ऑफ द एक्टिविटीज इज निक्षय मित्र। तो क्या करेगा वो? शेल प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू ऑल ऑन ट्रीटमेंट टीबी पेशेंट्स हु हैव गिवन कंसेंट फॉर सपोर्ट। Now coming on to this line ki what do we mean by who have given consent for support? Again referring to Nural sir's speech कि अभी भी लोगों में एक कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है ये बताने में कि मुझे टीबी है, ठीक है ना। अब मैंने कह दिया, मैंने अपना ये बोल दिया कि मैं निक्षय मित्र बनने के लिए विलिंग हूँ, और मान लीजिए मेरा पड़ोसी जिसको टीबी है, तो मुझे एक सरकार की तरफ से आ जाता है कि हाँ जी आपका पड़ोसी जो है आप उसकी सहायता कीजिए क्योंकि उसको टीबी है। पर हो सकता है मेरा पड़ोसी कंफर्टेबल ना हो, उसको रादर ये चीज ऑफेंडिंग लगे कि ये क्या, मुझे टीबी है ऐसे कैसे बताया गया। तो सबसे पहले निक्षय मित्र से मैं सहायता लेना चाहता हूं कि नहीं लेना चाहता, हर टीबी पेशेंट से एक कंसेंट लिया जाएगा। पोर्टल पे पहले टीबी पेशेंट से जब हर टीबी पेशेंट की पोर्टल पे, निक्षय पोर्टल पे एंट्री होती है तो वहां पे टीबी पेशेंट एक कंसेंट देगा कि मैं टीबी निक्षय मित्र से सहायता लेना चाहता हूँ। तो जो ये कंसेंट देंगे, जो हामी भरेंगे, उन्हीं को ही निक्षय मित्र जो है डील करेगा। जो हामी नहीं भरेंगे उनके पास निक्षय मित्र नहीं जाएगा। द रीजन इज वेरी सिंपल कि स्टिल है बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, बिकॉज टीबी कहीं ना कहीं हमारे सोशल सेटअप को भी जज करता है, तो पीपल में नॉट बी कंफर्टेबल। तो इसलिए किसी के साथ कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है, वी कैन नॉट फोर्स एनी टीबी पेशेंट कि नहीं आपको तो निक्षय मित्र की सहायता लेनी ही पड़ेगी। पहले वो ये कंसेंट देगा कि हाँ मैं निक्षय मित्र की सहायता लेना चाहता हूँ, तभी उसके बाद निक्षय मित्र, जो भी निक्षय मित्र उसके आसपास होंगे, वो उनसे उसको सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी। दैट इज वाई दिस इज द लाइन दैट टीबी पेशेंट हु हैव गिवन कंसेंट फॉर सपोर्ट इन द सिलेक्टेड हेल्थ फैसिलिटी, ब्लॉक्स, अर्बन वार्ड्स, डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स। सो डिपेंडिंग अपॉन कि वो निक्षय मित्र कौन है, अगर तो सिर्फ इंडिविजुअल बेसिस पे, जैसे मैं अकेले अपने इंडिपेंडेंटली अपने आप को रजिस्टर कराती हूँ, तो डेफिनेटली मुझे कोई आसपास का पेशेंट या जो मैंने दिया होगा कि मैं यहाँ तक किसी भी टीबी पेशेंट को देखने के लिए तैयार हूँ, वो मेरी एट माय विल वो रजिस्टर हो जाएगा। जब हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो उनको पूरा ब्लॉक, जिस ब्लॉक में उनका कैचमेंट एरिया बनता है, या कोई पूरा स्टेट, पूरा डिस्ट्रिक्ट, व्हाटएवर, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना वो ऑर्गेनाइजेशन का साइज है, उसके अकॉर्डिंगली उनको उस जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। और वो उसमें लिखेंगे कि हाँ, वो उस पोर्टल में जब करेंगे कि आई एम विलिंग टू टेक or we are willing to take as a organization responsibility of this specific district, then that district will be or that area will be allotted to that organization and it will not be reflected for other organizations। कि ऐसा नहीं है कि उसी एरिया में एक और ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, वो भी कहे कि मैंने यही एरिया करना है, पर अब उनको ऑप्शन नहीं है। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह है कि जिसने पहले किसी एरिया को लॉक कर लिया तो दूसरे अगर ऑर्गेनाइजेशन विलिंग भी है उसे किसी और एरिया में मूव करना पड़ेगा। फाइन। ओनली इंडिविजुअल निक्षय मित्र कैन चूज पेशेंट्स फ्रॉम अ गिवन हेल्थ फैसिलिटी, कि इंडिविजुअल के पास क्योंकि उसके रिसोर्सेज लिमिटेड है तो वो अपनी मर्जी से चूज कर सकता है। बाकी सारी जितनी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है उनको एक प्रॉपर एरिया अलॉट होगा कि इसमें कोई भी पेशेंट है वो आपको देखना ही देखना है। फाइन, दिस इज हाउ द थिंग्स विल गो ऑन। तो व्हाट काइंड ऑफ असिस्टेंस दे आर गोइंग टू गिव?
फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन इज द न्यूट्रिशनल सपोर्ट, कि वो उनके खान पान का ध्यान रखेंगे, क्योंकि टीबी के पेशेंट को एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा कैलोरीज इनकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो दैट इज टू बी प्रोवाइडेड बाय निक्षय मित्र. देन एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस फॉर द डायग्नोज्ड टीबी पेशेंट्स. टीबी डेफिनेटली लंग्स की सबसे पहले एक हम लंग्स के लिए जो कॉमनेस्ट टीबी है, अदरवाइज टीबी इंटेस्टाइन में भी हो सकती है, बोन्स में भी हो सकती है, इवन ब्रेन में भी हो सकती है. देयर आर सो मेनी ऑर्गन्स व्हिच कैन बी अफेक्टेड बाय टीबी. तो दैट इज वन पार्ट. पहली एक इन्वेस्टिगेशन तो हो गई, जिसके बाद हमने उसको एंटी टीबी ट्रीटमेंट पे डाला, बट इवेंचुअली हो सकता है उसको किसी और इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत हो. फॉर एग्जांपल कि जितनी टीबी की ड्रग्स हैं इनका लिवर पे भी थोड़ा बहुत असर रहता है, तो हमें टाइम टू टाइम लिवर एंजाइम्स, मतलब लिवर की फंक्शनिंग ठीक है कि नहीं, वो इन्वेस्टिगेशंस भी करवानी पड़ती हैं. तो दैट काइंड ऑफ सपोर्ट वी नीड अगेन फ्रॉम निक्षय मित्र, कि वो उनको सपोर्ट करें इन एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस के लिए, कि उनकी तरफ से कोई ऐसी फंडिंग हो या पेशेंट को लेके ही जाना है, कुछ भी ऐसा, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय निक्षय मित्र. देन वोकेशनल सपोर्ट. What do we mean by vocational support? Vocational support is something which can help to earn their livelihood. कि क्योंकि वो अपनी हेल्थ इश्यूज की वजह से हो सकता है उनका काम छूट गया हो, या वो अपना जिस काम को कर रहे थे वो काम वो प्रॉपरली नहीं कर रहे, तो निक्षय मित्र इस चीज में हेल्प कर सकता है कि उनको नई जॉब या उसी काम में कैसे उनको सपोर्ट कराया जाए, वो सारी चीजें, दैट इज अंडर वोकेशनल सपोर्ट. या उनको फिर कोई नई चीज सिखा के, कोई और नई स्किल, कि वो काम तो अब वो कर नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल कि हम कहें कि जैसे कपड़ा इंडस्ट्री है, टीबी के पेशेंट को हम प्रेफर करते हैं कि वो कपड़ा इंडस्ट्री में काम ना करे, क्योंकि उसमें से भी जो उड़ता है वो फाइबर, दैट कैन अगेन मेक द टीबी कंडीशन वर्स. तो अब उसका वहां से तो काम छूट गया, तो हम उसको कोई और काम सिखा सकें, अगर कुछ उसको नहीं आता, या तो उसको कोई काम सिखा सकें, या उसकी कोई प्लेसमेंट ऐसी जगह करवा सकें जहां पे उसको ऐसे हानिकारक और एक्सपोजर ना हो, और वो अपना सैलरी या अपनी इनकम भी कुछ ले सके. देन एडिशनल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स. एट टाइम्स उनमें कोई खास तरह की भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ सकती हैं, लाइक B6, विटामिन B6 डेफिशिएंसीज कॉमन अमंग पेशेंट्स who are on anti-TB treatment. Otherwise, that is there in the therapy also. But similarly, जब लिवर नहीं काम करेगा तो और भी कई सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज दिखनी शुरू हो जाएंगी, तो वो सारी सपोर्ट भी निक्षय मित्र द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी. मिनिमम पीरियड ऑफ कमिटमेंट फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट टू टीबी पेशेंट शेल बी 1 year. दैट इज द कि आज आपका दिल कर रहा है कि मुझे सपोर्ट करना है, पर हो सकता है कि ये काम आज आसान लग रहा है, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही, बट डेफिनेटली व्हेन यू टेक अप द जॉब इट नीड्स सम डेडिकेशन. अगर आप आज निक्षय मित्र बनने का कुछ लेते हैं कि मैंने करना है, आप यू डिसाइड ऑन टू दिस थिंग, तो यू हैव टू सी कि आपकी जो सपोर्ट है वो कम से कम 1 साल तक आप, देन यू आर बॉन्डेड, कि आपने 1 साल तक वो अपनी सर्विसेज टीबी पेशेंट्स को देनी ही है. ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज गवर्नमेंट हैज नो टाइम कि आज तो आपका दिल कर रहा है, कल आपका दिल नहीं कर रहा है, या यू आर स्टक समवेयर. तो टेक इट एज अ, यू कैन से, बॉन्ड और एनीथिंग that you have given this undertaking कि once I am there to be Nikshay Mitra, I have decided to be Nikshay Mitra, or organization has decided to be Nikshay Mitra, they have to at least serve the community for 1 year. Fine. So these are some of the, you can say, main points regarding the initiative. Now what do we expect? हमने इतना कुछ किया है कि ये एक पूरी कम्युनिटी को हम इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेशन? कि हम हमेशा कुछ भी करते हैं तो उसके फल की इच्छा एक रहती है, तो वो क्या फल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इनिशिएटिव के बाद? दिस इनिशिएटिव विल इंक्रीज द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सोसाइटी इन फाइट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस. फर्स्ट चीज कि जब हम कल को जब कोट करेंगे, जब लोगों को ये पता ही नहीं है कि क्या था क्या नहीं था, तो दे विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट. तो आज हमने उनको इन्वॉल्व करके, जब कल टीबी फ्री हो जाएगा तो दे विल बी एक्चुअली एबल टू अप्रिशिएट कि हाँ जी, हमने इंडिया को टीबी मुक्त करवाया. पोलियो मुक्त भी अगर सब इन्वॉल्व हुए थे तो ही आज हम इतने उससे कह सकते हैं कि हम पोलियो मुक्त हैं. उसी तरह जब हम आज काम करेंगे टीबी मुक्त कराने में, तो कल जब टीबी मुक्त हम होंगे तो वी विल बी
in a better position to appreciate this status. The activity aims at increasing awareness among public regarding tuberculosis. जब आप किसी टीबी पेशेंट के साथ क्लोजली काम करेंगे तो आपको खुद को जो गैप्स हैं आपकी नॉलेज में, शायद आपको थोड़ा बहुत पता हो कि टीबी इस वजह से है या उस वजह से है या क्या करना चाहिए, बट दैट कंप्लीट नॉलेज व्हेन यू विल एक्चुअली डू द एक्टिविटीज, लाइक जैसे कि सुनने करने से 5 या 10% ही हमें याद रहता है, पर जब हम एक्चुअली में कोई काम करते हैं तो हमें चीजें 70 से 80% याद होती हैं. तो दैट इज द मोटिव बिहाइंड दिस कि बाकी लोगों से जो हमें चाहिए कि वो अपना ध्यान रखें, उनको टीबी ना हो, तो जब वो खुद इन्वॉल्व होंगे तो उनकी वो जो नॉलेज है वो और अच्छे से बढ़ेगी और दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस. एक तो वो टीबी पेशेंट को सपोर्ट ही करेंगे, साथ में वो खुद को अपने आसपास के लोगों को बचाने का भी काम कर पाएंगे. इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी इन सपोर्टिंग द ट्रीटमेंट कैस्केड शैल ऑल्सो हेल्प इन रिडक्शन ऑफ स्टिग्मा. जैसे हमने कहा कि हाँ जी, सोसाइटी में अभी भी टीबी पेशेंट ओपनली कहने में डरता है कि मुझे टीबी है, तो वो एक स्टिग्मा है कि कहीं ना कहीं एक तरह का सामाजिक अवरोध हो जाता है उसके लिए कि मैं कैसे बताऊं कि मुझे टीबी है. तो होता क्या है कि जिसको सांस की टीबी है, जो 70 से 80% लोगों को सांस की टीबी है, तो वो सबसे ज्यादा इस चीज के लिए होते हैं कि जब भी वो खांसेंगे बोलेंगे तो वो दूसरे को इन्फेक्शन देंगे. पर क्योंकि वो बता नहीं रहा, वो बता नहीं रहा, तो यानी कि वो मुंह भी नहीं ढकेगा, मुंह नहीं ढकेगा तो वो आसपास अपने आसपास के सभी लोगों को इन्फेक्शन देता ही रहेगा. तो जब ओपनली, जब कम्युनिटी खुद इन्वॉल्व हो रही है टीबी पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए, तो वो स्टिग्मा कम हो जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं ये बताने में भी शर्म नहीं आएगी और वो बेटर वे में दोनों, वो खुद भी मास्क लगा के या मुंह ढक के रख सकता है और साथ वाले भी अगर ढक रहे हैं तो उससे उसको बुरा भी नहीं लगेगा और इस तरीके से हम जो टीबी ट्रांसमिशन है उसको बेटर वे में रोक पाएंगे. प्रोविजन ऑफ एडिशनल सपोर्ट टू टीबी शैल आल्सो रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली. कहीं जैसे हमने कहा कि टीबी इज अ डिजीज ऑफ समवेयर इकोनॉमिकली लो पॉपुलेशन, तो उनका दे आर नॉट एबल टू स्पेंड ऑन द अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर टीबी ट्रीटमेंट, कि सिर्फ दवाएं तो हम फ्री में दे रहे हैं, पर जो और सपोर्ट चाहिए जिस पे पैसा खर्च होता है, लाइक आई एम सेइंग कि न्यूट्रिशन की बात है, तो दे आर नॉट एबल टू हैव. तो वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो पेशेंट की पॉकेट से खर्च हो रहा है. बहुत सारी चीजें सरकार की तरफ से आ जाती हैं, पर कुछ चीजें पेशेंट को फिर भी उसके आने जाने का ही कह लें कि अगर उसको कहीं आना जाना पड़ता है, उसके पास इतना भी ये नहीं है कि वो टिकट ले सके, तो ये सारी चीजें ट्रीटमेंट के खर्चे में ही गिनी जाएंगी. तो these are the things which will be somewhere looked upon by निक्षय मित्र, कि वो उसको इन चीजों में सपोर्ट करेगा, तो वो पेशेंट का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, तो हमें बेटर कंप्लायंस कि वो टीबी ट्रीटमेंट ले ही ले, वो ज्यादा अच्छी मोटिवेशन मिलेगी. अल्टीमेटली इंप्रूव न्यूट्रिशन फॉर द टीबी पेशेंट शैल रिजल्ट इन बेटर ट्रीटमेंट आउटकम्स. तो ये दोबारा वही चीज कि बेसिकली हमारा एक मोटिव यही है कि कैसे भी करके जो ट्रीटमेंट आउटकम, सब कुछ अच्छा है, ट्रीटमेंट अच्छा है, पर द स्टिल क्योंकि और बहुत सारी चीजें ट्रीटमेंट आउटकम को कंट्रीब्यूट करती हैं, तो दैट इज द रीजन कि वी वांट टू हैव होल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कि वी कैन हैव अ बेटर ट्रीटमेंट आउटकम. जस्ट टू टेल यू कि व्हाट इज देयर, कि अगर रेजिस्टेंट टीबी है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट अगर रेजिस्टेंट टीबी आ जाए कि जिसमें रूटीन की दवाएं असर नहीं कर रही, वी नीड टू गो फॉर स्ट्रॉन्गर मेडिकेशंस और ड्रग्स टू द टीबी पेशेंट एंड ट्रीटमेंट समवेयर लास्ट फॉर 24 months. देन ऑल्सो बिकॉज एक तो 24 months ट्रीटमेंट लेना ही मुश्किल है, सेकेंडली उनके साइड इफेक्ट्स उससे भी ज्यादा हैं जो रूटीन ड्रग्स के हैं. तो कहीं ना कहीं 24 महीने लेने के बाद भी अभी हमारा स्टेटस ये है कि वी आर नॉट वेरी श्योर कि फाइनली हम टीबी पेशेंट को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे. मतलब एमडीआर टीबी अभी भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में चल रही है, एंड दैट इज द रीजन कि वी वांट होल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कि हम उस पिक्चर में पहुंचे ही नहीं, कम से कम लोग एमडीआर टीबी में जाएं, सो दैट कि वी आर वेरी श्योर कि हम टीबी को ट्रीट कर सकते हैं. तो हु आर द स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है कि जब भी कोई पॉलिसी है, जो वो भी कोई काम करने में कौन कौन उससे प्रभावित होगा.
काम करने वाला भी प्रभावित होता है और जिसको काम का फायदा होना है वो भी प्रभावित होता है. तो the stakeholders of this initiative are TB patient. Definitely everything is for TB patient. Then community, because we are asking the community to participate actively. तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से ये मैसेज है ना, मैं आपको ये इस लेक्चर के माध्यम से हम आपको भी ये मोटिवेट करना चाहते हैं कि इफ यू आर इन अ कंडीशन टू सपोर्ट टीबी पेशेंट, तो यू शुड कम फॉरवर्ड, रजिस्टर योरसेल्फ एंड देन do good for the TB patient. That is why whole of the community as such is a stakeholder for this initiative, and especially who actually will be formally registering themselves in Nikshay Mitra portal, cooperatives, corporates, elected representatives, individual institution, they are the stakeholders. State and district administration, central TB division, because they are the people. They are indirectly you can say government is also, because they have the onus of keeping the good health of their population. So they are also the stakeholders of this initiative. So what do we intend to do? A broader outlook, I will not go into the details कि हम इसमें क्या क्या करेंगे, कैसे ये जो इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, कैसे इसको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाएगा. तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम इन स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स अबाउट इनिशिएटिव इंक्लूडिंग आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स. आई फील कि बहुत सारे लोगों को इनका पता भी होगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्या है, तो वहां से उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी सो दैट बिकॉज वहीं से हमारा यू कैन से शुरू होगा काम. डिसेमिनेशन प्लान फॉर द इनिशिएटिव. डिसेमिनेशन मीन्स कि सबको इंफॉर्मेशन देनी. Even this lecture is also a part of, you can say, dissemination plan. कि information is being distributed, being disseminated to all the stakeholders. So this is also one of the, you can say, move to dissemination plan for the initiative. Nationwide drive for obtaining consent from TB patients. As I told you कि ऐसा नहीं है कि बस आपका दिल किया और आपको कोई भी TB patient मिल जाएगा. हमें साइड बाय साइड टीबी पेशेंट्स का भी कंसेंट लेना है. तो वो भी एक ड्राइव शुरू होगी कि जितने भी हमारे पास टीबी पेशेंट्स हैं, जो पुराने हैं वो भी और जो नए रजिस्टर हो रहे हैं, सबसे हम एक कंसेंट ले पाए कि यस दे आर विलिंग टू हैव सपोर्ट फ्रॉम निक्षय मित्र. आइडेंटिफिकेशन ऑफ निक्षय मित्र एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू सपोर्ट टीबी पेशेंट्स, कि उनकी भी प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन, जो भी निक्षय मित्र बनने के लिए कंसेंट देते हैं, विलिंगनेस है, तो वो उनकी प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन होगी निक्षय 2.0. दिस इज द पोर्टल जहां पे वो लोग अपने आप को, हम लोग, आई शुड से नॉट वो लोग, रादर हम लोग अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं. नीड्स असेसमेंट ऑफ ब्लॉक्स, अर्बन वार्ड्स, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स. एट टाइम्स क्या है कि देयर आर डिफरेंट नीड्स. चाहे हमने बहुत सारी चीजें की हैं कि वोकेशनल रिहेबिलिटेशन है या न्यूट्रिशनल सपोर्ट है या एडिशनल डायग्नोस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है, पर हर एरिया की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है. लाइक इफ आई कंपेयर नॉर्थ ईस्ट विद आवर स्टेट, तो वहां पे बहुत सारी चीजें और भी हो सकता है जरूरत हो. तो हर जगह की एक नीड असेसमेंट की जाएगी कि क्या क्या चीजें हैं जो टीबी पेशेंट को चाहिए, एंड दैट इज द सपोर्ट विच वी रिक्वायर फ्रॉम निक्षय मित्र. डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड सपोर्ट टू द बेनिफिशियरी. देन फाइनली जब हमने सब कुछ कर लिया, एक प्लान बना लिया, हमने निक्षय मित्र भी ले लिया, निक्षय टीबी पेशेंट भी ले लिया, हमने उसकी नीड भी असेस कर ली, देन क्या आता है कि उसके बाद उनको वो सर्विसेज दी जाए. देन रिपोर्टिंग ऑन निक्षय पोर्टल. टाइमली हमने हर टाइम टू टाइम हमने एक रिपोर्ट निक्षय पोर्टल पे सबमिट करनी है कि यस दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. कौन सी सर्विस हम उनको दे रहे हैं, कौन सी नहीं दे पा रहे, या क्या हमें किस तरह की हर्डल्स हैं, क्यों नहीं दे पा रहे, ऑल दीज थिंग्स. एंड देन फाइनली ग्रीवेंस रिड्रेसल. किसी के भी ग्रीवेंस हो सकते हैं, पेशेंट के भी ग्रीवेंस हो सकते हैं, निक्षय मित्र के भी, तो उनका भी समाधान करना. तो these are the, you can say, key points that how we are going to implement this Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan. So how you can contribute? I have otherwise highlighted the things during my lecture, that one thing is you can register yourself as Nikshay Mitra if you are willing, and go for the services. These are the services. When you register, there will be a list of services which will be there, that what you want to do as Nikshay Mitra. You want to provide this support, that support, whatever. So you can select that these are the services which I will be able. Or the second thing, what I can suggest through this lecture,
that even if you are not in a position कि आज मैं formally निक्षय मित्र पे अपने आप को register कर पाऊं, do use the knowledge of this lecture, do take good knowledge about TB so that you can communicate, you can support in an informal way to a TB patient if you know somebody that yes, this or that is a TB patient and somewhere he or she is not able to take good care of himself, so you can help that patient. That much you can do, and finally when you will be confident enough or you will be in a position, then you can register yourself to Nikshay Mitra. So that is how you can contribute towards this Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan. So this was all about a broader way. These are few of the clips when government was starting this program. They tried to create awareness. As you can see, TB infection also spreads financial and social health of TB पेशेंट्स, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट कि उसकी फिजिकल हेल्थ जाती है, उसको सोशल स्टिग्मा है, तो वो भी हेल्थ उसकी खत्म होती है कहीं ना कहीं जब वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेता है इंडोर्स में, और जो ट्रीटमेंट पे खर्चा आता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसका जो इकोनॉमिक स्टेटस है दैट ऑल्सो कम्स डाउन. This is one story of you can say female whose husband was also TB positive, but he could not survive and she then contracted resistant TB, and then she got treated very well after 24 months of successful treatment, and now she is even supporting other TB patients. So these are some few of the, you can say, success stories of TB program. Till now, since 9 September, since the launch of this program, as you can see, 175 corporate and 10 business association have already, you can say, taken oath that they will be supporting the TB patients. This is, I am talking about the organizations. So my key message will be that having a disease is not destiny, which used to be thought of. It is a choice, rather a wrong choice, which is made on the part of the patient due to ignorance and lack of knowledge. So do have right knowledge, be responsible, and act responsibly, because your illness is not only your loss, it is loss to the family and loss to nation. So with these words, thank you very much. And now I would like to end my lecture here. Thank you, madam. Thank you. I think this lecture will be beneficial for all of us. Yeah, Dr. Nurul. Yes, sir. Just I wanted to thanks ma'am and invite Dr. Savita for her comments and vote of thanks. Thank you, Dr. Nurul, for giving me the opportunity to present a vote of thanks. First of all, I would like to thank our key speaker of today, Dr. Anshu Mittal. Ma'am, very well you have explained what were the symptoms of TB, how the TB bacteria came into existence, how old it is, how old disease it is, as far as the ancient excavations and other things have also come into our knowledge, and how many people in our country now they are affected, as you have told that around 4 lakh people are still infected with this disease, and it is a very, very deadly disease as far as the number of deaths that are coming in our country because of this, as 4 lakh is a very big number. And this has come even after when our country is doing a lot of initiatives for the treatment of this thing. As you already told that this is not just the beginning as 9 September. It is a very old initiative of the government. Still there is a lack of awareness among the people, among the patients also who are who have contracted this disease, and they are not taking the treatment as seriously as DOT treatment is already into fact. So many hospitals, government hospitals, they are already having these DOT clinics separately, where the treatment of these TB patient is being done by the government, that is free of cost.
and minimum 6 to 1 year, as you have already told, that treatment takes. But whenever people they get some relief after 2-3 months, they stop the treatment because some side effects are also there. So because of that, they leave the treatment in between, and because of this, as you have already told, that TB resistance patients, they are increasing in our country a lot, and this is causing the deaths also, because when the resistant TB is there, then the medicines they also become ineffective for this treatment. So to avoid this drug resistant TB, as you are told that MDR is also there, multi drug resistant TB is also increasing day by day, and this is because of lack of awareness among our patients, and because of this it is happening. So we have to create an awareness, and to create an awareness among masses. Lot of work has been done by the country government, but still, like polio, as you have told, that we eradicated polio because of a mass movement. People also involved along with the government initiatives, they cooperated, they took their children to the polio booths, and because of that, and regularly whenever the campaign was there, people took their children, they administered the doses of 2 drops, and now the menace of polio is eradicated almost from our country, and we can say that our country is now polio free. So this is the thing the community and the masses and the public has to do for the treatment of to eradicate this TB from our country. And as you have already said, that along with the government, the now the Niksha scheme is also there. Like the government is spending 500 rupees each for the nutrition requirement of the patients. Now through this Niksha scheme, they're also taking the help of the industries and other influential people, financially stable people, who can contribute 700 rupees for the nutrition basket of the per patient also. So this is the government initiative. And if as I've told you that as you're told that 175 organizations are already registered in this, so we can say that lots of people, they are coming forward to help the government in this fight against the eradication, in this fight against the TB. And finally, as was awareness among the students is concerned, IGNOU is taking this step very seriously and cooperating with the government, and creating awareness among our students by doing these seminars and all the regional centers across the country are doing this. And this is also our bit of contribution while organizing this online lecture through you, so that we can also get aware about this, our staff also get aware about this, and moreover our students also, they can also get aware about this. So whenever there is a patient around us or somebody else is known about having TB, so we can tell the patient, and you can tell the people, create awareness that don't take it as a stigma. It is a curable disease, you can get treatment, and there are lots of facilities. We can tell them about what are the facilities, treatments are available free of cost from the government, and how the government is also financially helping the patients, and also supporting them in getting a suitable job which will help them in getting treated better by providing better job environment, so that they can not get their condition don't get worse. Like you said that in textile industry, if they will working, then their situation can get work. So alternate job will be provided to such industry workers who are having TB, and they can be employed somewhere else where the environment is better. As you have said that Himachal Pradesh is good for health of these TB patients, so there are also wellness centers are there. So these kind of things can be done by the society, so that we can help these patients in treating them. So thank you very much for giving the detailed about this initiative of the government, and giving us the knowledge, so that we can also create more awareness among our students and among our staff in this thing. And our sincere thanks to our regional director, sir, Dr. Bhanu Pratap Singh, who has organized this lecture for our staff and for our students. Nurul ji for coordinating this thing, and all our staff members and the students who are joining this meeting. So thank you very much. Thank you to all. Thank you. and all. Thank Thank you. you all. और मुझे लगता है आई मस्ट से थैंक यू टू डॉक्टर अमित कुमार जैन. So thank you, madam. Thank you, sir. Thank you all. Have a good Giving day. me opportunity Nice that to I see could you. also share, I could also contribute. Thank you, sir. Thank you. Thank you.